Welcome to the Emerging Lawyer series at the Coffee Conversation Show, powered by the Emerging India Forum TIF and a tech partner, Prime Infotech Solution. Theme is From Hacking Cases to Privacy Battles. We have with us Raj Pagaria, partner at Nemi Law and the Cyberblog India, a legal mind at the forefront of cyber law, data protection, and emerging tech regulations. With over a decade of experience, Raj has handled 21,000 plus cybercrime cases, removed sensitive content from 65,000 sites, and advised businesses on navigating the legal landscape of AI, blockchain, and cybersecurity. Beyond the legal world, who is the man behind the cybercrime cases? What drives him? And what does he do when he's not dealing with all these legal battles? So, welcome, Raj, to today's coffee conversation. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me today. Yeah. So let me explain you the flow and the format. So it's, there are three rounds: professional, personal, and a surprise rapid Okay. fire round for which witty, fun, and quick रहना पड़ेगा. फिर इसके लिए आपको you'll get a gift also. Is your Okay. organ cyber Awesome. healthy? So related to your topic, which will be Okay. autographed and sent to you. Oh, that would be great. Yeah. Uh, so, friends, I'm Lion Amir Virani, host at Coffee Conversation and legal tech evangelist at Prime Infotech Solution, author of 15 books. We help law firms, corporate legal, startups, SMEs with world class technology, software licensing, and tech training solutions. So, my first question, Raj, how has the journey shaped till date and any key defining moments you have had? Okay. So when we started the Cyberblog India team, I was not there on day zero. Not a lot of people know this. I joined the Cyberblog India team on day 17th of its existence. And the Oh, conversation behind joining was very simple. पगारिया कॉलेज का काम करेगा या अपना काम करेगा कमिंग फ्रॉम अ सीनियर एंड आई सेड नहीं नहीं अपना खुद का कुछ काम करूंगा एंड देन ही सेड क्या आता है आई रिस्पॉन्डेड कुछ नहीं बिकॉज आई वाज इन फर्स्ट ईयर एट दैट पॉइंट इन टाइम देन ही सेड कि मैं सिखाऊंगा तो सीख लेगा एंड देन आई रिस्पॉन्डेड कि हाँ जैसा आप बोलो and that is how I ended up becoming a part of the Cyberblog India team. And we have seen ups and downs. We have seen the growth of the internet. When we started, there were barely 15, 18 crore internet users. Abhi ke jo numbers say they are 80 plus CR, 80 CR plus. So we have seen that humongous growth of internet users in India. In the last 10 or 11 odd years, we have seen cybercrime कैसे evolve हुआ है. And there have been some times where I thought कि मैं साइबर क्यों करता हूँ, मे बी आई शुड डू समथिंग एल्स. मैं साइबर ब्लॉग इंडिया में क्यों काम करता हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए ना. बट देर हैव बीन ऑलवेज सम लेसन्स और लर्निंग्स वेयर वी कुड अंडरस्टैंड कि हमारे काम का इम्पैक्ट क्या है. एंड उसने सर्टेनली हेल्प किया है टू पुश फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन दैट वी आर एंड मेक श्योर दैट वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी नो टू डू. wow. So, Raj, with your experience, what's one cybersecurity mistake businesses make that keeps you at night? ओके. हर बिजनेस के पास बहुत सारा डेटा होता है. एवरी बिजनेस इज गॉट प्लेंटी ऑफ डेटा, क्लाइंट डेटा, ये डेटा वो डेटा. एंड देन यू हैव एम्प्लॉयज. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज द फैक्ट दैट अगर आप एम्प्लॉय को कुछ डेटा का एक्सेस दे रहे हो तो यू हैव टू रिकॉर्ड दैट इंसिडेंट कि आप उसको एक्सेस दे रहे हो. सो दैट जब आप 100 लोगों में एक्सेस बांट दोगे, यू वुड हैव सम डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड टेलिंग यू कि किसके पास क्या एक्सेस है. People just, the decision makers or the business owners or the managers, they just keep on giving access to people without documenting it. And when something happens, a security incident happens, data theft happens, they keep figuring out ki kaun data leke gaya hai, because they have no idea over the course of last 2 years to all the employees that they've given access data to कि किसको क्या दिया है. सो दिस इज वन थिंग दैट वरीज मी द मोस्ट. मुझे अगर कोई कंसल्टेशन के लिए बुलाता है तो यूजुअली आपको आधे मीटिंग में पता चल जाता है कि आपको काम देंगे या नहीं देंगे.
irrespective of whatever they want to, whether they want to engage me or not, मैं आखिरी में जरूर बोलता हूँ, प्लीज कंसिडर दिस इज अ फ्री पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी, कि जितना भी आपके पास डेटा है, मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ डॉक्यूमेंट कि आपका कहाँ पे क्या क्या डेटा है और उसका एक्सेस किस किस के पास है. Wow, beautiful. Okay. So from your, let's go dive deep in conversation. What work is involved in for fraud management? Can you take us through the various steps when a client approaches you and you go to the site, and what other steps are taken? And after you have done the diagnosis, what you give them the treatment? Okay, this doesn't happen. Okay. So in India, when I did specifically did frauds in my team, that was the time जब OTP frauds और card cloning वाले frauds were very prominent, right? So people would come in that I was in Delhi, but my card has been swiped in some XYZ city down south and I'm not sure what happened. या फिर मैंने गलती से मिस्टेक हो गया और OTP दे दिया है, अब मुझे नहीं पता क्या करना है. So the first step is telling them that see, it's all right. कोई बात नहीं, we'll drag you out of this, we'll pull you out of this, don't need to worry, don't panic. अभी जितना नुकसान हो गया है उतना तो हो गया है, अभी उसको कैसे रिकवर करना है इसके लिए आप पैनिक मत करो, थोड़ा सा काम रहो और जो जो हुआ है एग्जैक्टली वो मुझे समझाओ. A lot of times what I've seen is that when people panic कि उनका 10 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया, they miss out on important details कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. बहुत बार लोग ये भी नहीं बताते हैं कि उन्होंने कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करी थी जिससे रिमोट एक्सेस दिया था. दे जस्ट से कि ओटीपी आया, मैंने तो नहीं बताया पर फ्रॉड हो गया. सो नाउ ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल यू कांट से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप गलत बता रहे हो, यू कांट डू दैट. So I basically the first step is understanding everything that has happened thoroughly कि ऐसा ऐसा हुआ है is in the chain of events कि what led to this, आपको कैसे बेवकूफ बनाया गया, आपने क्या गलती करी क्या गलती नहीं करी. And once all of this is done, then we ask for certain pieces of information कि अब अगर इसको आगे कहीं भी रिपोर्ट करना है तो we will be needing evidence. This can be screenshots, this can be emails, this can be account statement और identity cards. और फिर हम बताते हैं कि यहाँ 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 ऐसे करना पड़ेगा, इज दिस समथिंग दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, तो आप कर लीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू नीड आवर असिस्टेंस, देन वी डू दैट प्रोसेस. अभी डिपेंडिंग ऑन कि क्या फ्रॉड है क्या लाइबिलिटी है, व्हाट आर द लॉस सेइंग, देन वी डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन असिस्ट आवर क्लाइंट्स इन फॉलोइंग दैट कोर्स ऑफ एक्शन टिल द एंड. Wow. So Raj, you have handled thousands of cybercrime cases. Is there one case that has stuck with you the most? Something that was truly unforgettable? I will say there are multiple in so many cases that I where know, I sir. think 21,000. नहीं, जहाँ मुझे लगता है कि सो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि वेयर आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी और एज अ कल्चर और एज अ जनरेशन. आई हैव अ यंगर ब्रदर, मस्ट बी अबाउट 8.5 years यंगर देन मी. तो मेरे पीछे वाली जनरेशन क्या रायता फैलाती है इंटरनेट पे, दैट आई एम वेरी क्लोजली फेमिलियर विथ. मुझे फर्स्ट हैंड इन्फो मिलती है, जो मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिलती है वो अलग है, बट जो एक्चुअल हो रहा है अनफिल्टर्ड. सो आई रियली फील बैड अबाउट केसेस, और आई जो सबसे बुरे केसेस होते हैं दे आर रिवेंज पॉर्न केसेस हैपनिंग विद माइनर्स. Hmm. क्योंकि रिवेंज पॉर्न में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है ही और शी और दे आर योर फॉर्मर पार्टनर. अभी आपका पार्टनर आपको वो सब तरीके से जानता है जो आपने उसको बताया होता है. जैसे आप घर में मम्मी से ज्यादा बात करते हो या पापा से ज्यादा बात करते हो, आपकी बड़े भाई बड़े सिबलिंग बड़ी बहन से कैसी बातचीत है, घर में डर किससे लगता है. तो जब वो पार्टनर आपको ब्लैकमेल करेगा ना, तो ब्लैकमेल बड़ा कस्टमाइज्ड होता है टू हैव दैट मैक्सिमम इम्पैक्ट. अब क्या है, Hmm. कंसिडर अ 16 year old पर्सन, ठीक है, उसको पता है कि वो ऑलरेडी जिस तरह से इंटरनेट यूज कर रहा है, टू क्वाइट एन एक्सटेंट देयर पेरेंट्स आर नॉट ओके विथ इट. क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, तो दिन भर इंस्टाग्राम चलाता है, तो रील क्यों बनाता है बनाती है. दिस इज हैपनिंग इन एवरी पॉसिबल होम और एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द होम्स. तो देर इज दिस कम्युनिकेशन गैप दैट एग्जिस्ट, क्योंकि जो वो टीनेजर का इंटरनेट यूज है वो डिफरेंट है और जो पेरेंट्स का इंटरनेट यूज है वो डिफरेंट है.
I'll give you one incident. When I was in 8th standard, Facebook was getting popular. So coming from a Hmm. small town like I do, people used to tell my parents कि आपका लड़का लाइन से बाहर जा रहा है. जब फेसबुक चला रहा था मैं तो. ठीक है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. बट सो समहाउ आई एंड माय पेरेंट्स हैड दैट कॉन्वर्सेशन दैट सी दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग और दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. नाउ कमिंग Hmm. बैक, तो जो माइनर्स के साथ होता है, फर्स्ट लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट विद पेरेंट्स. दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज. उनको नहीं पता किसके पास जाना है, कहाँ जाना है. जिस पहले पर्सन पे बियॉन्ड देयर फैमिली दे ट्रस्टेड, वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो इजीली किस पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं. और तीसरा, कंसिडरिंग देयर एज, अगर उनको पंखा दिखा तो फिर सिर्फ रस्सी चाहिए. तो आई apparently unfortunately dealing with so many cases also has a drawback that एक पर्टिकुलर इंसिडेंट इफ आई कैन शेयर. देर इज दिस स्कूल जहाँ पे मैंने वर्कशॉप करी थी, एंड 8 से 12 तक के बच्चे थे. और आई थिंक इट वाज द लार्जेस्ट ऑडियंस दैट आई एवर एड्रेस्ड. करीब 1200 बच्चे थे. एंड इट वाज अ अमेजिंग वर्कशॉप. न्यूज़पेपर में कवर हुआ, सब बढ़िया. 2 months after the workshop, I receive a call from a girl. She was in 10th standard, saying कि कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है. अभी मैंने उससे बात किया, उसको समझाया, उसके पेरेंट्स को बताया कि आप ऐसा ऐसा करो. आई इवन स्पोक टू द लोकल पुलिस स्टेशन कि आप ऐसा ऐसा कर लो, मैं आई विल असिस्ट इन वॉट एवर वे पॉसिबल. एंड दैट गर्ल कमिटेड सुसाइड अ फ्यू डेज लेटर बिकॉज ऑफ द ब्लैकमेलिंग. Hmm. So this is just one of the instances. There are so many instances like this. But I think over time, I have also grown up professionally and personally and mentally that yes, something like this happens. You can do your best to avoid it or mitigate it, because I also know for a fact that there have been so many cases where people reaching out to us have been suicidal, and we have Hmm. prevented that from happening. So we cannot have 100% success rate. This is not business when you're talking about people's lives. Yes. But these cases जहाँ पे माइनर होते हैं, उनको उनका फॉर्मर पार्टनर ब्लैकमेल करता है, दे आर द वर्स्ट. Yes. So thank you for leading me in the conversation. Uh, as you said, कि भाई you're dealing with people, the emotions. Uh, have there been any incidents? I'm dividing into two, three parts. My question will be, how do you detach from this? ये एक केस आपने कंप्लीट कर दिए, because this must be causing an emotional toll on you also, okay, by dealing with people, because the mental state. So how do you, after the case is solved, how do you detach yourself, कि भाई you're not entangled emotionally? First thing, ये let's talk on this. Then I'll lead my ये conversation further. Okay. So this is something that again I've learned over the years कि ये कैसे करना होता है. जब काम शुरू किया था तब honestly ये नहीं आता था. And just like every other legal professional out there, or I think at least for the first generation lawyers जो खुद ही सब experience करते हैं, there used to be situations जहाँ पे emotional attachment या emotional involvement हो जाता था. But then I realized कि if I have to do this for my entire life, I cannot keep on getting emotionally invested. Professionally, I can be 110% invested into the case, but emotionally, I cannot. And I also recalled one incident that I faced, and when I was doing my internship in my law school. So my senior was doing cross examination of a विक्टिम, और जो केस था वो SC/ST एक्ट में और गैंग रेप में था. सो क्लोज्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग्स एंड एवरीथिंग. एंड माय सीनियर गिव मी द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट ही वांटेड टू आस्क, and we were standing outside the courtroom. And when I read the 19th question, so I started reading from the top, first, second, third. 19th तक मेरा गला बहुत भारी हो चुका था. एंड मैंने बोला, सर अपन ये क्वेश्चंस पूछेंगे इससे. एंड सो क्रॉस हुआ, और फिर बाद में बाहर आए, तो बाहर आते हुए उन्होंने बोला कि राज, अगर लॉयर बनना है या वकालत करना है तो अपना दिल रख के आते हैं कोर्ट के बाहर और दिमाग लेके आते हैं कोर्ट के अंदर. सो एवरी टाइम नाउ आई एम इन दिस doubtful situation, I remember that lesson, that one fine lawyer gave me this piece of advice, fully knowing that I would be coming across situations like this.
सो दैट्स हाउ अभी बहुत इमोशनली हेवी केसेस भी आते हैं, नो डाउट। बहुत सारे Yeah. लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है, एंड देन दे ट्रस्ट अस। फॉर एग्जांपल आई शेयर वन अनदर केस और ब्रीफली। एक Mm-hmm. मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है, उनका 2018 में वीडियो वायरल हो गया। अभी Mm-hmm. उनको पता ही नहीं था कि उनके फॉर्मर पार्टनर ने उनका वीडियो वायरल कर दिया है, नो आइडिया एब्सोल्युटली। कोविड आया, अभी कोविड में वो तो फ्रंटलाइन वर्कर थे, एंड वन ऑफ द पेशेंट्स टोल्ड हर कि मैडम आप तो वही हो ना जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो नाउ इफ आई पुट माई सेल्फ इन हर सिचुएशन, मुझे तो ऐसा लगेगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और 5,000 फीट का गड्ढा हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं Mm-hmm. है। शी रीच्ड आउट टू अस, हमने उनका वीडियो ढूंढा, हमको पता चला कि इट इज देयर ऑन 3,300 साइट्स। एज ऑफ टुडे इट इज नोवेयर। इट टुक अस 3 years, बट एज Wow. बट 3 years is a long process, Yeah. right? Very. So now in my communications with her or my client over the course of last 3 years, I certainly know a lot about her personal life, what she does, कौन से हॉस्पिटल में, बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। Mm-hmm. मेरा जो काम है मुझे बस उससे लेना देना है। एंड Right. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई प्रीफर डूइंग इज कि कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया है, मैं पहली मीटिंग में लीगल बात ही नहीं करता हूँ। Mm-hmm. अब आज 1 घंटा आए हो, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन फीस देते हैं, बहुत सारे नहीं देते हैं, पर आप 1 घंटा तो मेरा ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट यहां से ये तो लेके जाओ कि आपका दिल हल्का हो जाए। Correct. लॉयर Right. में भी हूँ, लॉयर 100 दूसरे भी हैं, पर एटलीस्ट आप मुझे इसलिए तो याद रखोगे कि मैंने आपको सुना। That's तो very. पहली मीटिंग में अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लीगल ब्रेन और लीगल काम क्या करना है ये दूसरी मीटिंग में हो जाएगा, बट पहली मीटिंग में हम बाइफरकेट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और Mm-hmm. व्यक्ति जो सामने व्यक्ति बैठा है उसके दिमाग में प्रेजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस क्या है, और इमोशनल लेवल क्या है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई रिकमेंड पीपल go talk to a psychiatrist, do a couple of sessions, and then come to me. That's very beautiful because emotional state of mind of the victim and the family Yes. is क्या बोलते हैं बहुत delicate है कि भाई anything can And happen. and I don't want to discuss, to be honest, मुझे कॉस्ट डिस्कस नहीं करना है उस स्टेट ऑफ माइंड में। Beautiful. So अभी ये हो गया victim का. Let's go to जो perpetrators. How have अपना ये cyber crime cases have evolved from ये in 10 years time? ओके, सो फेक अकाउंट्स पहले भी बनते थे, फेक अकाउंट्स आज भी बनते हैं, उसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। वो आगे भी बनते आएंगे, नया प्लेटफॉर्म आएगा, नए फोटोज यूज होंगे, नए फेक अकाउंट्स बन जाएंगे। दैट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कॉन्स्टेंट्स इन द साइबर स्पेस, कि फेक अकाउंट्स हमेशा बनेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म। इवोल्यूशन की बात करें तो पहले फ्रॉड्स कैसे होते थे, कोई आपके पास एटीएम पे आया, उसने बोला अच्छा लाइए आपका एटीएम नहीं चल रहा है, और उसके अंदर जैकेट में हर तरह का कार्ड लगा हुआ है, उसने स्वैप कर दिया, आप फर्जी कार्ड लेके घर चले गए, उसके सामने पिन डाला था, पैसा निकल गया। अब ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो चुका है, अब ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है पहले नहीं हो रहा था, पहले भी नाइजीरियन प्रिंस को इंडिया में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजना थे, मैंने भी एक बार अपने उसको एंटरटेन किया व्हेन आई वाज इन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। बट अब क्या है, अब कोविड के टाइम पे वैक्सीन का स्लॉट बुक करना था, कोविड के पहले आधार कार्ड पैन कार्ड, और ड्यूरिंग कोविड आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना था। अब आजकल ये चल रहा है कि आपके आपके नाम का पार्सल है, इसमें ड्रग्स निकला है, हाँ आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे। सो वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑल दीज इयर्स, कि ट्रस्ट वहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जहाँ सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है। Hmm. लोग गवर्नमेंट पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते, सर घर बैठे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड करवा देंगे। जनता पुलिस में ट्रस्ट नहीं करती, हम पुलिस से बात कर रहे हैं, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो अगर ये ट्रस्ट का गैप नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी होगी, तो जनता को पता होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, नोबडी कैन डिजिटली अरेस्ट यू। और आप देखो कि जो फ्रॉडस्टर्स है, जो स्कैमर्स हैं, वो कितने अच्छे होते जा रहे हैं बात करने में। मेरे पास Hmm. 10 लीड आती है, मैं 3 कन्वर्ट कर लेता हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्या बात है, 30% कन्वर्जन रेट, तालियां बजाई जाए।
ये लोग, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन कॉन्वर्सेशनल स्किल्स है, मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके उसको 10-20% इंप्रूव कर लूंगा, पूरा तो नहीं बदल पाऊंगा। अब इतनी उम्र हो गई है कि उसको पूरा बदलने के लिए वापस बचपन में जाना पड़े। बट दी स्कैमर्स क्या स्वीट टॉकर्स हैं। वो हम्म, स्क्रीन के सामने स्काइप पे बिठा के 36 घंटे बिठा के रख रहे हैं और लोग बैठ रहे हैं। हम्म, सो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियरल वीकनेसेस हैं, ये जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, हो सकता है वो 10th भी पास नहीं होगा जो स्कैमर है, पर उसको ये आता है। yes, yes, yes. उसको अकाउंट्स में से पैसा घुमाते आता है, उसको ये करते आता है, वो पुलिस की वर्दी पहन सकता है, भले उस पे सही से लिखा हुआ नहीं हो, कलर सही ना दिखे, बोल ना पाए, चार उसको सेक्शंस नहीं पता होंगे, राइट। तो ये हो गया तीसरा। एआई का जमाना है सर, वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है। अभी एक ऐप है, आई वोंट टेक द नेम, बट इंस्टाग्राम पे न जाने जो ऐप खोलो वहां पे उसका ऐड आ रहा है कि अगर एक फोटो में दो लोग हैं तो वो उसको किस करवा देगा। हाउ इज दैट अ गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी अगर किसी के साथ फोटो है, लेट्स से इन अ प्रोफेशनल स्पेस, तो मेरा जो माइंड सेडिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड कितना सेडिस्टिक होना चाहिए, कैन यूटिलाइज दैट पिक्चर टू क्रिएट अ 5 सेकंड वीडियो वेर आई एम किसिंग दैट पर्सन। तो अभी कोई मेरा फोटो लेके उसको वैसा बना सकता है। तो अभी ये अभी हो रहा है एआई से। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले फोटोशॉप से मॉर्फिंग हो रही थी। अब वो मॉर्फिंग में जो मैनुअल एफर्ट्स लग रहे थे वो कम हो गए, अब वो ज्यादा रियलिस्टिक हो गया है। पहले भी सेलिब्रिटीज के नाम पे या सेलिब्रिटीज के फोटोज यूज करके वायरल किए जाते थे कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। दैट वाज मॉर्फिंग इन उस टाइम के जमाने में। अभी मॉर्फिंग हो गई है एआई के कंटेक्स्ट में। हम्म, पहले ईमेल स्पूफिंग होती थी, आजकल और सोफिस्टिकेटेड हो गई है। आज मैंने सुबह एक ईमेल देखा जो मैंने ही अपने दूसरे ईमेल से मेरे वर्क ईमेल पे भेजा है। तो 1 सेकंड के लिए मैंने भी सोचा कि यार मैंने तो ये ईमेल नहीं भेजा, देन आई रियलाइज किया अरे ये तो स्पूफ्ड है। सो आई टेल पीपल, कोई भी आता है तो कि आपके साथ हुआ है, इट्स ओके, बट दिस इज समथिंग दैट कैन इवन हैपन विथ मी। मुझे सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड में गलत डिसीजन ही तो लेना है बस। सो दिस इज द इवोल्यूशन। और wow. जो थोड़ा बहुत टाइम चीजों में लगता था, वो 5G इंटरनेट ने और यूपीआई ने खत्म कर दिया। That's interesting. So, you're giving me idea to have at Coffee Con. We also started panel discussion. We have done panel discussion on cyber safety, but ओके। on cyber crime, I would like to have a panel discussion with you and other coffee speakers. There are those who are doing this. One is an ethical hacker. One is अपना ये data prevention पे working for the राइट। अपना banks and financial institutions. So it will be a really interesting thing. Because मुझे limit करने का है, otherwise I would have more questions. So I'm stopping myself, या। and I want to cover other areas of your professional journey. So राइट। let's go there. So Raj, uh, do you see any groundbreaking changes coming in the next 5 to 10 years for cyber law? So we finally have the DPDP Act after so many years of drafts and redrafts. अभी rules भी आए हैं. Then there is also the Digital India Act being talked about. So you will see any changes that are going to come, और जो भी बहुत बड़ा change होगा, I think that will be opposed to quite an extent by people having their own different interests. तो क्योंकि कोई भी चेंज, अगर लीगल चेंज आता है तो कंप्लायंस करना पड़ता है, इन कंप्लायंस इज कैपिटल एक्सपेंस। सो दैट्स वन। तो मेरे हिसाब से तो मेजर चेंजेस यही होंगे। और इंस्टेड ऑफ चेंजिंग लॉ आफ्टर लॉ, हमको उसका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज आई असिस्ट लॉट ऑफ डिफेंस लॉयर्स, एंड बिलीव मी, I am more confident on my defense getting successful than a prosecution story getting successful. तो मेरा मैं एज ए लॉयर विथ सो लिमिटेड एक्सपीरियंस, अगर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, तो पीपल हु डू हार्डकोर क्रिमिनल, तो आईटी एक्ट में जो कम कन्विक्शन रेट है हमको उसको एड्रेस करना चाहिए। लॉ तो आप नाम कुछ भी रखो, इम्प्लीमेंट हो तो वो काम का है।
So as much as I would want to see some great changes happening in the space, but I'm still going to be worried about the implementation. Yeah. Okay. So, Raj, you're leading two organizations. So, briefly, Yeah. we want to understand uh, the Cyberblog India. What are the activities over there? And at Nemilaw, what are the activities? Okay, so at the Cyberblog India, when we started, the idea was simple to write for our parents. 2014 में जब स्टार्ट किया था, क्योंकि लीगल कम्युनिटी लॉयर्स के लिए लिख रही थी, टेक कम्युनिटी इंजीनियर्स और टेक के लिए लिख रही थी। इंटरनेट नया नया आया था हमारे शहरों में, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में। मोबाइल पे 350 में 1 GB डेटा आता था, एंड nobody was writing for our parents. So that's how we started the Cyberblog India. That जो भी हमें साइबर का थोड़ा बहुत आता है, we are going to write it in a language that everybody can understand, not just the legal community or the technical community. So we started writing articles, simple. फेसबुक को कैसे सिक्योर करना है, इंस्टाग्राम को कैसे सिक्योर करना है, एफआईआर कैसे होती है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है. सो दैट इज कोर पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज टिल डेट टू व्हाट वी डू टुडे. साथ साथ वी हैव बीन डूइंग वर्कशॉप्स. वी हैव डन अबाउट 650 odd workshops. I like talking to kids about how internet interferes with their day-to-day lives. So we have catered to college students, school students. कोविड के टाइम पे 4 5 6 साल के बच्चे जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थे, senior citizens, police officers, judicial officers, and whatnot. So we've done workshops throughout the spectrum of society in different personal and professional roles. So that is one thing that we will also continue in the future. Now, we also have a team of good researchers. So हम उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं जिन चीज़ों पे कोई रिसर्च नहीं करता है. आप इफ यू गो टू आवर वेबसाइट राइट नाउ, देयर इज अ गुड चांस कि आपको डीपीडीपी एक्ट पे ज्यादा आर्टिकल्स ना मिले, क्योंकि उसके बारे में सब लिख रहे हैं, हमें नहीं लिखना. हमारा Yes. कोई गोल नहीं है कि मुझे महीने में 4 आर्टिकल पब्लिश करना है. नहीं भी होगा तो चलेगा, अपना ही ब्लॉग है. But we just don't want to contribute to the information overflow that is already out there. We want to write something that makes sense and not a lot of people are talking about it. हमारे साइबर ब्लॉग इंडिया पे भी ऑल्सो हैव अ केस समरी सेक्शन. जब हम लॉ स्टूडेंट्स थे, अभी भी प्रोफेशन में 30 पेज का जजमेंट पढ़ने का बहुत बार टाइम नहीं होता है. So we have summarized over 1500 judgments reported at High Court and Supreme Court in some other jurisdictions apart from India as well. 500-600 वर्ड्स में पूरे केस की समरी. एंड देन देयर इज आल्सो रिलेवेंसी एट द टॉप दैट यू कैन सी कि अच्छा है केस क्या रिलेवेंट है. सो दिस इज एवरीथिंग दैट हैपेंस विद द साइबर ब्लॉग इंडिया. एक और जो हमारा मेन काम है साइबर ब्लॉग इंडिया पे, दैट इज कंसल्टेशन एंड लीगल एडवाइजरी. सो एवरी केस कमिंग थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. वी वर आल्सो द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू यूज व्हाट्सएप एज अ हेल्पलाइन वे बैक इन 2014, जब व्हाट्सएप बिजनेस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी. सो केसेस आते हैं, वी एडवाइस देम जहाँ लगता है कि इनकी हेल्प ऐसे ही हो सकती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वी हैव रेडीली इन्फॉर्मेशन, वी प्रोवाइड देम. जहाँ लगता है कि नहीं, यहाँ पे इनको पूरा समझ के प्रोफेशनल एडवाइस देना पड़ेगी, सो वी गो थ्रू द कंसल्टेशन राउट. अगर लगता है कि हम इनको इनके लोकली किसी सिटी में हमारे लॉयर कनेक्ट्स के थ्रू इनका काम हो जाएगा, सो वी कनेक्ट देम. सो वी गॉट अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री वर्किंग, closely working with them in so many different cases. अब आते हैं नेमी लॉ पार्टनर्स पे. सो वी स्टार्टेड नेमी लॉ पार्टनर्स September last year. And so when I shifted to Indore, I started my own practice with the name Raj Pagar and Associates. And 4 5 साल बढ़िया चलाया. And then I and one of my college juniors from UPS, he's from Bhopal, we were having this conversation. He was like, राज भैया, इंदौर में प्रैक्टिस करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. तो मैंने बोला इतना क्यों लोड लेता है, आजा साथ में काम करते हैं. सो दैट्स हाउ नेमी लॉ पार्टनर्स हैपेंड. एंड नेमी लॉ पार्टनर्स इज प्योरली लिटिगेशन फोकस्ड, जिसमें मेरा जो काम है, माय पोर्टफोलियो इज साइबर टेक्नोलॉजी, डेटा प्रोटेक्शन, एंड ऑफ कोर्स जो भी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का डिजिटल स्पेस से इंटरफेस है. माय पार्टनर अनुज, ही लुक्स आफ्टर जनरल कॉर्पोरेट, civil recovery cases, real estate cases. So we are trying to move towards a place, at least at Nemi Law Partners, where we are the full service law firm for our clients. Wow. So, how did this name came up, Nemilaw? Okay. Okay, my partner would certainly have a word when I tell you the actual reason, but anyways, I'm going to have this conversation with him sooner or later.
So we decided that we are going to work together, I think at least 1.5 years ago, as of today. But we were not able to find a suitable name for it. Almost every name that we liked, अभी दो लोगों को एग्री करना है ना, तो every name that we liked, somebody had taken up. लॉ में नहीं तो किसी और डोमेन। अभी कोविड में ये भी हुआ ना कि लॉ फर्म्स बहुत सारी आ गई, उन्होंने 6 महीना चलाया फिर बंद कर दिया, पर अब वो नाम तो लेके बैठ चुके हैं। सो बाय रिलीजन आई एम अ जैन, राइट? सो ऐसे ही मैं अपने घर पे आई वॉज गोइंग थ्रू बुक्स, तो हमारे इसमें जो तीर्थंकर्स होते हैं 24, उसमें एक तीर्थंकर का नाम है नेमीनाथ। तो मैं ना ऐसे एक एक नाम पढ़ के ना कॉम्बिनेशन देख रहा था कि अभी हमको बहुत पुराना भी नहीं लगना है, नया भी लगना है, बट नेम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट वाज गोइंग ऑन। तो मुझे नेम ही बड़ा अच्छा लगा। अभी मुझे मेरे पार्टनर को कन्विंस करना है, तो मैंने गूगल किया कि नेमी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मुझे दो मतलब दिखे जो नेमी वर्ड के समझ में आए। पहला थंडरबोल्ट, और दूसरा एक विल जो कि कंटिन्यूअसली इन मोशन है। तो आई वेंट टू अनुज, ही लिव जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस। बोला अनुज नाम मिल गया। तो उसने बोला क्या मिला है? मैं बोला नेमी लॉ पार्टनर्स। बोले नेमी का मतलब क्या होता है? मैं बोला नेमी का मतलब होता है थंडरबोल्ट, जहां जाएंगे छा जाएंगे, और दूसरा विल कंटिन्यूअसली इन मोशन, हमेशा काम करेंगे। अभी आज शाम को मैं उसको तीसरा भी बता दूंगा। फिर बाद में बताना। I इंटरेस्टिंग। let the episode come out and then tell him. Okay, I'll wait for it. Okay, that's interesting. Okay, so Raj, how has your leadership style evolved over the years, and how do you keep your team motivated? Because as they're working in sensitive cases and they have to be on their toes, dealing with emotions, sensitive, and they have to be ever evolving, stay ahead of the curve with technology also. ओके, सो मुझे लीडरशिप नहीं आती है। मुझे लीडरशिप उतनी आती है जितना मुझे लीड किया गया है। और फिर उसको देखते हुए मैंने, अभी क्या है, कोई आपको लीड करता है ना, तो आप सोचते हो इसको ऐसा नहीं बोलना था, मैं जब लीडर बनूंगा मैं ऐसा करूंगा। ये है, ये ऐसे मैंने लीडरशिप सीखी है। सो कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, मेरी इनिशियल एजुकेशन काफी हिंदी मीडियम में हुई। तो जब मैं कॉलेज गया और जब मैंने साइबर ब्लॉग इंडिया ज्वाइन किया, I couldn't even barely speak 2 sentences of English without stuttering or without some pronunciation going here and there. और मेरी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश तो हमको नहीं आती हो तो चलो ठीक है, हिंदी भी कोई बहुत अच्छी नहीं आती है। सो somebody took a chance on me when I was, मेरी skills का लेवल वो था, and today here I am talking to you about this in your show. So दिस इज वॉट आई लर्न कि अगर मुझ पे किसी ने चांस लिया तो उसने मुझे गलतियां करने का मौका बहुत दिया। जहां उनको सपोर्ट करना था उन्होंने सपोर्ट किया, जहां उनको डांटना था उन्होंने डांटा, और जहां उनको प्यार से बैठ के समझाना था उन्होंने समझाया। सो दैट इज वॉट आई स्टक टू कि मेरे पास अब, क्योंकि आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर पीपल कमिंग इन द साइबर ब्लॉग इंडिया ऑलमोस्ट होनली एंड सोनली सिंस 2018। तो आप आओ, गलतियां करो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कुछ अच्छा करोगे वो तुम्हारा क्रेडिट है। पर एक गलती अगर करी है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर आप उसी गलती को उतनी ही केयरलेसनेस के साथ दूसरी बार रिपोर्ट करोगे, दैट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर। सो इवन एट द साइबर ब्लॉग इंडिया टीम, जब हम इंटर्न्स लेते हैं तो हमारा हायरिंग प्रोसेस बहुत अलग है। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं इंटर्न से 5th या 6th वीक में पूछता हूँ कि अरे ये तो बताओ तुम कौन से कॉलेज से हो और कौन से ईयर से हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर आपको साइबर में इंटरेस्ट है, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आई कैन वर्क विथ यू। Wow. सो Yeah. क्योंकि काम सिखाया जा सकता है, करवाया नहीं जा सकता है। Yes. करने के लिए इट शुड कम फ्रॉम विद इन, कि मुझे करना है। मैं सिखाने को, मैंने 11 साल में क्या सीखा है, मैं आपको 10 दिन में बिठा के 8-8 घंटे रोज सब बता दूंगा कि क्या क्या सीखा है। बट हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट इज द रियल गेम, Mm. राइट? सो Mm. इवन इन द साइबर लॉग इंडिया टीम राइट नाउ, वी प्रीफर टेकिंग पीपल इन जो कि अपने लॉ स्कूल में फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं और जिनको काम सिखाया जा सकता है। Beautiful. तो So now, गलतियां करो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कुछ अच्छा किया, तुम्हारा क्रेडिट, मजे करो, आई एम एंजॉइंग पीछे से आराम से, क्रेडिट तुम्हारा। Wow. Raj, how has experience been dealing with law enforcement agencies? Okay, so very, this is one of those questions where I have to be very politically correct. I know, I know, I know. So I've trained, I've assisted, and then I've been against them as well, right? तो जितनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है पिछले 10 से 15 सालों में, उसके रिजल्ट्स दिखते हैं ग्राउंड पे, जिन्होंने एक्चुअल में सीखा है। जिन्होंने नहीं सीखा है अभी भी स्टेटस को ही है। सो देर आर सम पीपल हु आर डूइंग ग्रेट जॉब, एंड देर आर a lot of people who are not even doing what they're supposed to do. So my experience, I usually continue my relationships with people based on how committed they are to whatever they are doing. अगर वो मतलब सिंसियर नहीं है अपने काम के लिए, या जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिला और मुझे लगा यार ये तो अपने ही काम के लिए सिंसियर नहीं है, आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद देम, और लेट अलोन हैव अ कॉन्वर्सेशन आफ्टर 3 days। वो मेरे मन में बैठ जाएगा, आई विल हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन। सो सेम गोज कि आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द डे। सो जिन लोगों का पता है अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे पास अगर मुझे उनसे इंटरेक्ट करना है तो आई एम वेरी क्लियर कि मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस क्या है। Wow. So now, let's go to your new journey of doing LLM. So, what inspired you to do LLM, that too in business law, and how had it changed your perspective for the legal world? Okay. So my lifelong dream has been to do an LLM in technology law from Tilburg Law School. But when I graduated, कुछ responsibilities थी और ऐसी situation नहीं थी that LLM could be pursued. I couldn't leave my hometown, my parents, or the country at large. So वो तो 2020 में जब ग्रेजुएशन फाइनली पूरा हुआ, तो वो ड्रीम तो वहीं रह गया। फिर ये था दैट समहाउ सम आई लाइक टीचिंग, इन अ वे ऑफ सेइंग कि मुझे साइबर लॉ पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टेक्नोलॉजी की क्या बात करूंगा जिससे लोगों को इंटरेस्ट आएगा, फिर उसको लॉ से कैसे रिलेट करूंगा, आई लाइक इट सो मच। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो मेरे पास आती थी पर मुझे नहीं मिलती थी क्योंकि मैंने मास्टर्स नहीं कर रखा था। सो आई आफ्टर अ लॉट ऑफ पुश फ्रॉम माई पेरेंट्स कि तूने क्या ही किया है बैचलर्स करके, तू क्या अपने आप को ऐसे समझता है, यू नो हाउ दैट गोज। सो आई एंडेड अप सबमिटिंग द फॉर्म फॉर CUET PG। इंदौर में ही जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, वहाँ का जो स्कूल ऑफ लॉ है, मैंने काउंसलिंग में भरा। टू माई सरप्राइज मेरी रैंक 1 आ गई, एंड आई हैड नो वे टू टेल माई पेरेंट्स कि मेरे को तो सीट नहीं मिलेगी। सो दैट्स हाउ आई गॉट इन टू इट। बट वेन आई गॉट इन टू इट, आई वॉज वेरी श्योर दैट जितना सीरियसली मैंने बाकी का अपना एजुकेशन किया है उतना ही सीरियसली किया जाएगा। तो मेरा जो बीटेक LLB था दैट वाज फ्रॉम UPS, अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। सो आई फर्स्ट लर्नड कि हर चीज उतनी आसान नहीं होती है जितनी आपको पता होती है। लाइफ में बेसिक चीजों में भी चैलेंजेस होते हैं, and you are going to meet a lot of people with different backgrounds, and then that is one lesson that you should keep with yourself कि उन सबसे आपको बात करना है, और आपको Wow. प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के बियॉन्ड भी लोगों से बात करना पड़ सकती है। Yes. Because So, my last when one. I yeah when I was in my first semester, I my post qualification experience was 4 years, and I had been working from 2014, so I was 9 years into the industry when I joined my LLM. So for Mhm. this, my only inspiration was my mother, who joined a diploma when she was 46. So that's how I kept on pushing myself कि नहीं नहीं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। That's impressive. So, your mother is a. You should watch the TV serial Pushpa Impossible. No, she doesn't. She's teaching right now, but I think both my parents entered into education in the last 4 or 5 years, and my father is still studying. Why I'm talking about Pushpa Impossible? Because Pushpa is also after marriage and after so many years. उसने अपना Okay. ये HSC की, सॉरी SSC
अभी वो HSC एंड शी बिकेम ये एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे उसने SSC कंप्लीट की. सो हर So स्किल I, सेट yeah, ये. So, so hats off to your mother also. She also inspired to all yes, I those think women out there. I am one of the luckiest kids to shout at the graduation ceremony of his mother when she graduated at the top of her class. I shouted like anything that day when her name was announced and she was going up to the stage. So yeah. Wow, beautiful moment. Okay. So Raj, you have mentored many interns and young professionals. What's one piece of advice you would give to aspiring cyber lawyers? This is not like your traditional legal domain. यहाँ अगर तुमने अपने आप को एक्सपर्ट समझा तो तुम 6 महीने में आउटडेटेड हो जाओगे. Wonderful. Wow. Okay. Let's go to the next round and understand Raj as a person. Bits and pieces you have told about your family, but we'd like to know more. Tell us about your family and your formative years. So I was born into a village. Uh, हिंदी मीडियम में मेरी इनिशियल एजुकेशन हुई एंड आई थिंक दोज वर द बेस्ट ईयर्स. बढ़िया. 11 से 5 स्कूल जाना है. 5 बजे के बाद कोई दुनिया की टेंशन नहीं है. फिर अगले दिन सुबह 9 बजे पता चल ही जाएगा कि स्कूल जाना है या नहीं जाना है. So then we moved to a tehsil so that I can get admitted to a English medium school, state board में. Then I moved to CBSE board. आई ऑल्सो वेंट टू कोटा क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि साइबर में कुछ करना है तो आईआईटी की तैयारी करो. सो आई वेंट टू कोटा. देन आई रियलाइज्ड इन माय सेकेंड ईयर एट कोटा कि अगर मैंने आईआईटी निकाल भी लिया तो मैं इंजीनियर बनूंगा. तो जो मैं साइबर में जाना चाहता हूँ वो तो नहीं जा पाऊंगा. And then I stumbled upon my UG course, which is an integrated BTech LLB honors, BTech in computer science and LLB honors with specialization in cyber law. So that's when तब ऐसा लगा कि हाँ ठीक है अब हो जाएगा काम हो जाएगा. Because I remember this one incident where one day I woke up after my 12th result and I decided that I'm going to tell my father कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करना है. आपके काम की ABCD सिखा दो. So I've been there कि अब आगे नहीं करना अब तो काम धंधे में लग जाते हैं क्या है. कमा खा तो लेंगे मतलब. टिपिकल स्मॉल टाउन माइंडसेट कि ठीक है ना 20-30 हजार रुपया तो चाहिए हो जाएगा. सो आई हैव बीन इन दैट पोजिशन कि जहाँ मुझे लगता था कि अब आगे पढ़ाई करके क्या ही करूंगा. सो वी आर अ फैमिली ऑफ 5. मेरा छोटा भाई, माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर. एंड both of my parents, since they got married very very early, they did not have that luxury of pursuing their further education, so which they've done in the last 5 years that we've been in Indore. And my brother apparently did what I couldn't. He cleared the IIT JEE examination and he's currently studying aerospace engineering. So this is my family. And the age difference between me and my parents is not much, about 19 years on an average for both of them. So one good thing that I always appreciate my parents for कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनका और उनके पेरेंट्स के बीच में एज डिफरेंस था 25 years, 27 years, 30 years. So there was a lot of communication gap. They couldn't even, for example, I could talk about my girlfriends with my parents on the same day that I proposed a girl. So ये difference था कि I had parents for only 19 years and my friends or my classmates जिनके 27-28 साल वाला डिफरेंस था. So I always appreciate them कि उन्होंने मुझे भी and even my brother they've always given us an open hand. But yeah, of course there have been some things कि ये नहीं करना ये करना है ऐसा वैसा. बट जैसे उन्होंने पूछा क्या क्या पढ़ाई करना है तो मैंने बोला कि मुझे साइबर लॉ करना है. तो माई फादर वॉज वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरे पास इतना पैसा है या तो मैं तेरी एजुकेशन में लगा सकता हूँ या तेरी पढ़ाई में लगा सकता हूँ. यू डिसाइड एंड यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन. तू 3 साल पढ़ के ये नहीं बोलेगा कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करना है. सेम वॉज विथ माई ब्रदर सेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग. लाइक पेरेंट्स वाले ठीक है करो. So, Raj, you deal with intense cybercrime cases. How do you switch off and unwind after a tough day? So by the time that I get home, it's almost dinner time or past dinner time. I would probably sit with my mother and my father, and also my grandmother if she's up. We'll talk about random stuff that has mostly no relevance to real life.
random things happening in the world. And yeah, 30 minutes of good conversation can take away days of stress because it is just I and my family. And once that is done, I avoid using a lot of laptop at my home. So I'll probably read poetry और लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिमाग में और हिम्मत या एनर्जी बची है तो साइकोलॉजी। Wow. So, Raj, your job requires a lot of critical thinking. Do you have any hobbies that help keep your creativity flowing? Critical thinking, yes, but I think it requires a lot of sympathy and empathy. Apparently ये दो चीजें नहीं सीखी जा सकती है, but over time I've found ways to do that. Critical thinking is required. तो उसके लिए I've got a decent partner that I can discuss law with. So I have my own interpretations of law. उसके अपने interpretations हैं. So that is that discussion. और I at times जब मुझे नहीं समझ में आता है कि इस केस में करना क्या है, so without disclosing any details, I just have a casual conversation with somebody in my family कि यार ऐसा हुआ था तो क्या करना चाहिए, just to get a different perspective. क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को जो क्लाइंट से ब्रीफिंग मिला है वो क्लाइंट का वर्जन है, मैंने जैसे उसको परसीव किया है वो मेरा वर्जन है, और मेरा वर्जन बहुत लिमिटेड है क्योंकि ना तो मैंने खुद फेस किया है, ना मैं क्लाइंट को पर्सनली जानता हूँ. सो जस्ट टू गेट अ डिफरेंट पीओवी और जस्ट टू गेट अ डिफरेंट ओपिनियन, आई विल प्रोबेबली डिस्कस इट विदाउट ऑफ कोर्स डिस्क्लोजिंग द स्पेसिफिक डिटेल्स, एंड देन आई विल एनालाइज इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. क्योंकि इन वॉट एवर टाइम दैट आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव लर्न, मैंने ये सीखा है कि एक चीज के मल्टीपल पहलू हो सकते हैं और एक से ज्यादा पहलू भी सही हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो वो ही सही है. मल्टीपल डायरेक्शंस कैन ऑल्सो बी राइट. सो अनलेस आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दोज डायरेक्शंस, मेरा जो मुझे लग रहा है सही है मैं वहीं तक लिमिटेड रहूंगा. सो आई विल डिस्कस द लीगल पॉइंट्स एंड देन आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन डूइंग साइबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव क्वेरीज जो मुझे लगता है कि बच्चों जैसी है, बट आई जस्ट ड्रॉप देम अ टेक्स्ट कि ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, एंड दे आर काइंड इनफ टू रिस्पॉन्ड कि हाँ राज ऐसा है ऐसा नहीं है. Wow. What's one thing your friends know about you that most people wouldn't guess? ओके, I can sleep in my office, be it I'm sitting on my chair right now or I'm sitting on my sofa. I can sleep. I'll just close the door and I'll sleep. I can, so my friends know for a fact that I can sleep anywhere. So a lot of Interesting. people think, for example, my parents also think that if I'm in my office for 10 hours, I've been working for 10 hours, but that is rarely the case. I would have certainly slept for at least 1 hour in between. That's interesting. So, Raj, what's the best trip you have ever taken and what made it so memorable? So the best, I studied in Dehradun, right? So I think one of the best, or the in terms of thrill and everything, is one trip that we took, I and some of my friends, to Dhanolti. So the when we started from Dehradun, the weather was sunny with no expectation of rain or anything. Winter, but सूरज निकला हुआ है, ठीक है, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. उसके एक दो दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ था. सो हम धनोल्टी पहुंचे, एंड देहरादून वेदर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आई एम श्योर यू वुड हियर दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. सो वी जब हम पहुंचे और उसके बाद से जो मौसम बदला है, जो सन गायब हुआ है, and while we were returning in the evening, the temperature, it was very cold, there was ice all around, and all of the four of us, we were on bikes. और हम ग्लव्स नहीं लेके गए थे. हाँ हेलमेट था, विंटर वेयर था, पर विंटर वेयर एक ही लेयर था, वो ठंड के लिए हम प्रिपेयर ही नहीं थे. और फिर आते आते मसूरी के 5-7 किलोमीटर पहले खतरनाक तेज बारिश होने लगी. सो हमने 15-20 की स्पीड पे अपनी बाइक्स चलाई है while रिटर्निंग फ्रॉम देयर. So I've been to a lot of different places, but in terms of having limited resources and still making it back to your place, I think this one is right there.
So, who has influenced you from personally and professionally, and what were the learnings? So, personally, both of my parents, my father has done about 22 businesses, so I know failure is not the end of your story. My mother taught me never to give up. जो आपको सही लगता है वो सही, आप उसमें बिलीव करो। जो आपको गलत लगता है डे वन पे गलत बोल दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। सो माई मदर taught me to own up how I am, how I think, what I like and what I don't like. Apart from my parents, only had two mentors who are also at the Cyberblog India, Nitish and Rachita. So whatever I do in cyber today, or maybe 5 years down the line, or whatever I've done 5 years ago, the credit for all of that will always and always go to Nitish and Rachita. Because I remember मेरी English बहुत खराब थी, and Rachita would help me so much in correcting those issues. Nitish, I used to ask Nitish भैया कि यार मैंने ये email लिखा है, please देख लो, review कर लो, and he would do all of that just to make sure that I am capable of doing that on my own. I was very hesitant in talking to people or even doing public speaking. I used to shiver a lot. आई यूज टू स्वेट अ लॉट। आप मुझे 30 लोगों के सामने 2015 में खड़े करो, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज मुझे वो कॉन्फिडेंस है दैट इवन इफ यू गिव मी 1,000 के बच्चों का क्राउड, आई कैन डिलीवर 2 आवर सेशन एंड बी डन विद इट लाइक नथिंग हैपेंड। सो जो भी सिखाया है साइबर में, उसका क्रेडिट इज ऑलवेज फॉर नितेश and Achika. So, what are your goals for 2025 personally and professionally? Professionally, I'm trying to automate a few things because I want to take some time out for research. So I want to automate a few things. So I'm currently training some of my teammates on certain aspects of what we do. So that अगर वो चीज़ें automate होगी तो मेरा workload कम होगा, and then I'll be able to do some research. And personally, nothing as such. Personally goal तो ये है अभी कि weight कम करना है. Okay. So, my last one, which is the Yeah. googly one. Describe Raj in one line. So yeah, I've got a cup for it. Never give up. Okay. Interesting. Let's go to the next round and have some fun. The rapid fire round. Your Okay. favorite color? My favorite color purple. Go to comfort food. Burger. Okay. A movie or TV series that got cyber law hacking right. Hmm. Not a not quite lot there. Um, थोड़ा जो मुझे सही सही लगा है, नॉट हैकिंग, पर साइबर लॉ का इम्पैक्ट लोगों पे क्या होता है, या साइबर क्राइम का इम्पैक्ट लोगों पे क्या होता है। तो देर इज दिस टीवी सीरीज, उसके मल्टीपल वेरिएंट्स है, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर में एक है स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, जो उनका 25-26 सीजन से चला आ रहा है। And the lead character, Captain Benson, apparently she's also one of my favorite fictional characters. तो उसमें जो रिवेंज पोर्नोग्राफी और ब्लैकमेलिंग वाले इंसिडेंट्स आते हैं कुछ कुछ एपिसोड्स में, उनका जो डिपिक्शन है दैट आई फाइंड क्लोजेस्ट कि हाँ ऐसा सही में होता है। Wow. One book everyone in tech law should read. एक लॉ, एक बहुत ही कॉमन किताब है जो टेक लॉ में चलती है, दैट इज जॉर्ज ऑलवेज 1984। वो सबसे कॉमन है, बट आई डोंट वांट टू रिकमेंड इट। बट अगर टेक लॉ में कोई काम कर रहा है तो आई विल सजेस्ट देम रीडिंग अ फ्यू इंजीनियरिंग बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस। पहले Okay. टेक्नोलॉजी समझो फिर लीगल की बात करो। Okay. Your favorite color? आई सेड पर्पल। Sorry. You're a morning person or night owl? Both. On some days I'd be up at 7, on some days I'll sleep at 4. Wow. Favorite Jane cuisine? सो मेरे घर पे दो तरह का खाना बनता है।
एक जिसमें प्याज लहसुन होता है, एक जिसमें नहीं होता है। तो मेरा जो जिसमें होता है वो मेरा वाला बनता है। बट इन टर्म्स ऑफ समथिंग दैट आई लाइक, इवन इफ अगर आप प्याज और ये सारे एलिमेंट्स हटा दो, तो बाटी और उड़द चने की दाल। Favorite dessert from Indore? फेवरेट डेजर्ट फ्रॉम इंदौर? इंदौर में फ्यूजन फूड का कल्चर बहुत ज्यादा है एक्चुअली। हमारे यहाँ छप्पन है, हमारे यहाँ सराफा है, यू नेम इट, विल फ्यूज इट इनटू समथिंग। बट आई लाइक आइसक्रीम्स अ लॉट। सो मुझे अगर कहीं पे आइसक्रीम खाना होती है तो आई नो द प्लेसेस वेयर आई गो टू। तो उनके जो, अब मुझे ये भी पता है कौन सा आउटलेट वाला कितने कप में कितनी देता है। सो दैट इज माई ऑब्सेशन विद आइसक्रीम, कि मुझे पता है कि अगर मुझे ये वाली आइसक्रीम खाना है तो कौन सा आउटलेट जितना देना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा देगा। Wow, interesting. So my last one, tea or coffee? टी ऑलवेज, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन अ कॉफी शो। Never give up, sure. या नेवर गिव अप। So here's your gift. You're थैंक यू welcome, सो super मच, healthy. आई लुक फॉरवर्ड टू इट। Yes. So, friend, it was a lovely conversation discovering how cybercrimes have evolved and all those professionals out there who want to enter into the field of cybercrime, data theft, its prevention, its litigation. This is the episode where Raj has taken us through the process and everything and how it is evolving. It's all about psychology when you're dealing with a victim, how you have to be compassionate, understanding first, making them comfortable, not only the victim, but also the family, because family is also disturbed. So, anything is happening at company also, so the employees are all disturbed. The owners se leke, everyone is disturbed. So you have to first calm them and handle situation in what do you say, delicately, keeping our conversations, making them feel positive. So this is what I've learned during the conversation, Raj. And there are over 400 plus coffee speakers have shared their insights, professional, personal. So subscribe, watch, implement. It will really help you in your journeys to take your career, whether you're from a small town or from a city, अपना metro cities. All coffee speakers have got an interesting journey. Morning only, I did a coffee with ये he's a coach dealing with the founders Okay. from Australia. So वाह। he shifted from doing job at Microsoft and now he's into startup playbook, coaching them, taking them through the journey of how to come out of the failures to build your careers, because startup is also a different journey hota hai, यस। and founders. So this is what our coffee speakers bring to the table. And if you want to be featured like Raj, visit our website, the Emerging India Forum, or our LinkedIn page, the Emerging India Forum. अपना DM, a team will invite you to have coffee conversation. So take care. Thank you. बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।